हरे कृष्णा। 16 अगस्त। जहाँ तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं है। यदि प्रबंधन में कुछ दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, ना कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। इससे प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। बटू गोपाल को पत्र, 16 अगस्त 1974। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। That is called durasaya. That is hope against hope. Nati vidusartha gatingi Vishnu. They do not know that destination of life is to attain Krishna consciousness. No, they do not know. They think by increasing motor cars we shall be happy. This is called Maya. That will not help. This motor car civilization will be finished within another 100 years. It has begun, say, for the last 100 years, and after 100 years, when the scientists say the petroleum will be finished within 50 years or like that, so say 100 years, this motor car will be finished. So anything we manufacture, the so-called empire, so-called material civilization, it is finished. It will be finished. That is another knot only. That we become captivated. So, what is this Krishna consciousness movement? We must have 3 dozen motor car and 3 dozen wine bottles, and this is their civilization. So this is karma bandha. Narottam Das Thakur sings therefore, Sata sanga chhari koino asate bilas, te karone lagilo mor karma bandha fas. This is not. Karma bandha fas. Sata sanga. This is satsanga. This is satsanga. You are hearing Srimad Bhagavatam in the front of Krishna and practicing how to become pure. This is called satsanga. And asatsanga means this intoxication, illicit sex, and drinking, so many things, asatsanga. The advertisement, come on, here is cigarette, cool, make your brain cool. By smoking. Rascal, they think that I'm smoking, how it can be cool? But they purchase cool. This is called Maya. He's smoking fire and he's becoming cool. And the advertisement is going on and the rascals are captivated by this advertisement and they smoke, become cool. Yes. So this is called knot. In so many ways, they are tied up. See, actually, if anyone is kovida, here it is used. What is the meaning of kovida? Intelligent. Kovida means intelligent. So, intelligent person should see to it. Just like it is little intelligence. So we can see on the advertisement. We can immediately understand what is this nonsense advertisement. He is smoking and it is cool. So contradiction. You will find contradiction everywhere. Because they are not intelligent, they are thinking intelligent. But anyone who is intelligent, they can understand what is the trick. So, when actually one becomes intelligent, then the inquiry is, why? Why I am put into this miserable condition of life? I do not want this, and it is forced upon me. I do not want to die. Death is there. I do not want disease. The disease is there.
I do not want this. It is forced upon me. I don't want war. But the draft road drags me to the war. Why this? This why question must be there. That is intelligence. That is Kena Upanishad. Kena. That is Upanishad. Kena. And Sanatana Goswami, when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he also inquired this why. Kiyami kano more japi tapo troy. Who am I? Why I am put into this miserable condition of life? That is intelligence. He was minister. He could understand that I am minister. People adore me as very learned man. He said that to Chaitanya Mahaprabhu. Grammo ব্যবহারে কহয় পণ্ডিত সত্য করি মানি. My dear Lord, these common people, my neighbor, because I am minister and I am supposed to be educated, I know little Sanskrit, I know little Arabian language. They call me Pandit, learned man, very scholar, but to tell you frankly, I do not know what I am. So what is the value of my education? I do not know. Kiyami kano mori japatapatra. What I am. So this is called intelligence. And cats and dogs, they are suffering, they don't mind. They forget. You have got experience. A cat is coming to eat some milk here. You chastise, but again it comes. Again it comes. Because it is animal. And the difference between animal and man is, suppose there is very palatable dish. So man, unless he is offered, although he is greedy, although he is hankering after that food, but he is awaiting the invitation. Yes, you can take. But cats and dogs, without invitation, catches. That is the difference between a man and animal. Animal cannot control. Man can control. Although he is hungry, he can control. Out of civility. How can I taste without invitation? So that is the difference. Therefore, the conclusion is man's life is meant for control. Not like animal. I want it, immediately get it. And a cat and dog or a cow or a bull rape. As soon as there is a female, immediately rapes. So there is no punishment. But if you do that on the street, raping, immediately it will be criminal. So that is the difference. The inclination is there, both in the animal and in the human being. But the human being supposed to be controlled. That is human life. The more you control, you become perfect. And though the more you become loose, you are animal. That is the difference. That they do not know. They want freedom. In the freedom, in the name of freedom, they are becoming animals. That's all. This is the civilization. But here it is said, Kovida, intelligent. Intelligent man should take up this sword to cut the knot of our attachment for this material enjoyment. What is that? Anudhyasina. Anu means always. Another anu means following. Anu means always and anu means following. Following means spiritual master or acharya. Acharya upasanam. How acharya, how spiritual master dealing, let me follow that.
हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजार गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम बात कर रहे हो कर्म नहीं करने की, लेकिन हर जीव को कर्म करना पड़ता है। अब देखिए, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भी कर्म करते हैं। बैठ के कोई नहीं खा सकता। इस संसार में बैठ के कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है, शरीर तो डेड है। शरीर चाहे छोटे कीड़ा का हो या चींटी का हो या कुत्ता बिल्ली का हो, मनुष्य का हो, हाथी का हो, बड़ा व्हेल मछली का हो, देवताओं का हो या असुरों का हो, शरीर अलग अलग है, लेकिन शरीर तो मृत है। शरीर में कुछ जान नहीं। आत्मा जो है वह एक्टिव प्रिंसिपल है, हमेशा एक्टिव रहता है। आत्मा इनएक्टिव नहीं होता। तो आत्मा अगर एक्टिव है तो वो तो फिर काम करेगा। कर्म करना है तो शरीर अपने आप कर्म में लग जाता है। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं बेसिकली। एक जो माया के लिए होते हैं, हम भ्रम में आ जाते हैं, भक्तों से दूर हो जाते हैं और अपने आप को भोक्ता सोचने लगते हैं। न भगवान के बारे में कुछ पता है, न आत्मा के बारे में कुछ पता है, और इस संसार में, इस भ्रम में हम कर्म कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारा हृदय और जो है मलिन होता है, चेतना और खराब होती है, बंधन बढ़ता जाता है हमारे ऊपर। दूसरी तरफ भगवान की सेवा है। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति माया की सेवा है। ये भगवान की सेवा है जिसको भक्ति कहते हैं, जिसमें हमको पता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान भगवान है और मुझे भगवान की सेवा करनी है। क्यों? मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, सनातन काल से और सनातन काल तक रहेंगे। तो अगर एक बड़ा मशीन है और छोटा सा मशीन का हिस्सा है एक, तो मशीन में फिट होगा तभी उसका कोई प्रयोग है, तो उसको मशीन की आवश्यकता। वैसे हम भगवान के अंश हैं, तो इसीलिए भगवान की सेवा करना हमारे लिए जरूरी है। हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा नहीं हो रही। भगवान स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान की सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है, चेतना शुद्ध होती है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, इस संसार में जब हम भोग की तरफ लगते हैं, भ्रमित होके भोग की तरफ लगते हैं, तो हम फंसते जाते हैं। हाँ, नीचे जाते जाते हैं। जैसे दलदल होती है ना, दलदल में कैसे व्यक्ति फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। और भगवान की सेवा कैसी है? भगवान की सेवा करते जाएंगे तो और ऊपर उभरते जाएंगे। जैसे पंछी ऊपर की ओर उड़ान पड़ता है या हवाई जहाज ऊपर की ओर जाता है, वो तो एक लिमिटेड है, उनको वापस नीचे आना पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति हमें सिर्फ ऊपर लेके जाएगी, ऊपर और सीधा भगवान के धाम तक। तो अंत में हम क्या करना चाहते हैं? ये आत्मा का शुद्धिकरण ही जीवन का लक्ष्य है। और कैसे होगा शुद्धिकरण? भगवान की सेवा करके। जब परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, तो अभी से इसमें क्यों न लगे? आत्मा हमेशा कार्यशील रहती है। आत्मा कभी भी इनएक्टिव नहीं होता, हमेशा वो कार्यशील, कार्यरत रहता है। और शरीर कार्य करता रहता है, क्योंकि आत्मा कार्य कर रही, शरीर वैसा चलते रहता है। अब क्यों मैं ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों मैं ऐसा कार्य करूं जो मेरा बंधन का कारण बने? क्यों ना ऐसा कार्य करूं जो मेरे मोक्ष का कारण बने? अर्जुन अपने लिए युद्ध करता तो जितने भी लोग मारे जाते उस सबका पाप अर्जुन को आता। अगर अर्जुन कर्म से भाग जाता, युद्ध भूमि से भाग जाता, युद्ध नहीं करता, तो भी उसको पाप लगता, अपना कर्म नहीं करने का, कुछ और कर्म कर रहा होता। लेकिन अर्जुन ने
बुद्धि का प्रयोग किया, भगवान को शरणागत किया। हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। करना है कि नहीं करना है, ये तो कंफ्यूजन है। तो फिर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे, प्रामाणिक गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनकी शरण में आ जाए, गीता पढ़े। फिर अर्जुन ने क्या किया? युद्ध भी किया, लेकिन भगवान के कहे अनुसार। उसको भागना भी नहीं पड़ा, युद्ध किया, लेकिन एक भी जो व्यक्ति, वहां जितने भी लोग मारे गए, एक का भी अर्जुन के ऊपर पाप नहीं लगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? अनगह, अर्जुन को मैं अनगह, कि तुम पाप रहित हो। तो अगर भगवान या भगवान के प्रतिनिधि के उपदेश अनुसार हम कर्म में लगते हैं तो पाप से भी बच जाएंगे, और जो पुराने पाप किए हुए हैं हमने, वो भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। ये भक्ति का प्रभाव है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम खाली तो बैठ नहीं सकते, करना ही है। करना है तो वो करो जो मैं कहता हूं, उसमें तुम्हारा भला होगा। और जितने लोग मारे जाएंगे युद्ध में, उनका भी भला होगा, उनको भी जो है भक्ति प्राप्त हुई। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? न कर्म अपने मन से करना चाहिए, न कर्म से भागना चाहिए। हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मतलब हमको वो कर्म करने चाहिए जो भगवान हमें बता रहे हैं। उसमें क्या होगा? आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और फिर आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो क्या होता है? भूख मिटती है, शरीर में शक्ति आती है, और हमको संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही भक्ति करने से हमारी जो इच्छाएं भोग के प्रति है वो शांत हो जाएगी, आत्मा को शक्ति मिलेगी और आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ये भक्ति करने का। कर्म तो करना ही है, तो भक्ति करो, गलत कर्म मत करो, गलत दिशा में कर्म मत करो, जिसके कारण हमको बाद में भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है भक्ति करें, जैसे प्रामाणिक गुरु कहते हैं, जैसे भगवद गीता बताता है, जैसे भगवान बताते हैं, उस दिशा में चल के हम भक्ति करें और हृदय को शुद्ध करें, आत्मा को शुद्ध करें, और भगवत धाम की ओर अग्रसर हो। हरे कृष्ण।